Yes, my dear. Thank you very much. You are most welcome here in the class. Just I am going to teach you the chapter The Adventures of Toto. It has been written by Raskin Bond, a very good story writer. He has mostly written the story based on children's entertainment and enjoyment. Here in this adventurous story of Toto, Toto is a monkey who is very notorious. Toto is a monkey who is very notorious and always do some mischievous activities. Here, the author's grandfather has seen a Toto at the feeding trough of cart driver. Now here, actually, as far as we talk about monkeys, they are very notorious, they are very mischief, and they especially they live over the hills, they live over the trees and in the plains everywhere, and they do some wrong activities as which they tear, they tore all the things whatever they see, they pluck the fruits from the trees, they eat a little and throw it. In the same way, here we see that we should be much conscious about the monkeys. Here, Toto was one of the such little red monkey. It is a red monkey, and this red monkey is very fond of doing some mischievous work. Here, as author's grandfather goes to a Tonga driver, Tonga, that is a cart driver, you can say, that has been dragged by the horse. Now I have seen a monkey there who was feeding in trough. That was a part of cattle in which he was fastened to feed. Now he has, grandfather of the author has bought it at 5 rupees and he brought the Toto at his house. And as author's grandmother was very wispish, she was irritable, she was short tempered, she was not very much comfortable with the animals. Therefore, the grandfather and writer has hidden the monkey from the view of his grandmother, and it has been decided that it will be shown to grandmother when she will be comfortable, when she will be ease, when she will be happy. Now, at this, the animal has been brought, and author's grandfather has also a zoo at his home. In the zoo, he has kept many animals like tortoise, uh, tortoise, a pair of rabbits, tame squirrel he has, a goat and a donkey. That was the collection of his zoo, and in that he has tried to keep the monkey with the zoo in the cage, but the monkey did some notorious work. Because of it, the animals, those who were kept in the cage, could not sleep through the night. Therefore, the monkey was settled along with the donkey, and also he was teaching to the donkey. Once grandfather has gone to Saharanpur, he has to go to Saharanpur to take his pension. Therefore, he thought that Toto should be carried by him. And before this, as Toto was fastened in the peg of author's room,
Now after some time it has been seen that the decoration of the wall that has been kept by the paper has been torn. The peg was uprooted, and Toto's blazer was torn into many pieces that has been scattered here and there. Grandfather and author wanted to see Toto's condition, therefore they have just opened the room and they saw everything is scattered, everything is haphazard, everything has been torn, splitted. Therefore it was a very amazing factor. So Toto was kept in the cage, but he could not be comfortable with the other animals. And now then after it has been fastened with the donkey that was known as Nana, but also he was teasing to Nana, he was biting the ear of Nana. As author's grandfather has go to take his pension to Saharanpur from Dehradun, therefore he has kept in the bag, kept in the some grass as a cushion. Now in this condition he was to go to platform, railway platform. The ticket collector has seen Toto, therefore he has charged 3 rupees that you have a dog. Now grandfather has shown tortoise taken out from his pocket that should this be charged. The ticket collector said no, it is not a dog, therefore he will not be charged. Having seen the notoriousness, once it was a very foolery action has been done by Toto. There was a dish pulao has been kept over the table. Toto went near the pulao and he has just taken the plate and ran up to the tree. Now there he has eaten everything. In order to tease grandmother, he has thrown the plate and the plate was torn into, that has been converted into 100 pieces. Whenever anyone pass near Toto, except grandfather and the author, Toto now cover each and everyone, hold everyone, tear and make the hole in the clothes. Therefore it was very great trouble to Toto and the family members. Having seen the notoriousness and mischievous condition of Toto, it has been decided by the family that the monkey, who is the resident of hills, plains, trees, cannot be tamed in the house, and therefore because of being fed up from Toto, the author's grandfather goes to Tonga's river and sell him once more at the loss of 2 rupees. Only in 3 rupees he has sold. Therefore my dear, it is an interesting story. कहने का सेंस ये है कि टोटो एक नोटोरियस मिस्चीवियस शरारती बंदर था, जिसको ग्रैंडफादर एक बार टांगा ड्राइवर के घर से देखे कि वो फीडिंग ट्रक पे बंधा हुआ है, यानी कि जिस पे पशु खाना खाते हैं, मतलब खाते हैं, भूसा पुआल खाते हैं, वहीं बंधा हुआ था। तो उनको देख करके दया आई और सोचे कि ये हमारे जू में होना चाहिए था। इन्होंने एक ऑथर के ग्रैंडफादर एक घर पे जू का व्यवस्था बनाए थे, मतलब कुछ ये शौकीन थे। ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ कीपिंग द एनिमल्स, जानवरों को रखने के शौकीन थे। जैसे टॉर्टाइस था, हैं, ये क्या नाम था, स्क्वेरल्स थी, ठीक है, और बकरी भी थी, और भी जानवर थे जैसे कि रैबिट्स थे, हैं, रैबिट थे। तो ये सब एक पिंजरे में रहा करते थे। बकरी तो खैर कभी कभी जाती थी, हालांकि वो पिंजरे में नहीं रहती थी। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि हमारे घर पर एक जू है, छोटा सा जू है, तो वहाँ ये सब पशु रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये लेकर के 5 रुपीज़ में इसको लेकर के आते हैं। तो दादी जी के नेचर को ध्यान में रखते हुए कि ऑथर्स की दादी जो है
वो थोड़ी सी चिढ़ जाती है हर चीज़ों पे, इसलिए उससे बचाने के लिए टोटो के रूम में उस बंदर को रखा गया, यानी कि एक खूंटी थी उसमें बांध दिया गया और ये था। उसके बाद टोटो ने क्या किया, कमरा बंद हो गया। कुछ देर बाद लोग देखने आए कि टोटो किस तरह से रह रहा है, तो उन्होंने देखा कि जितने भी ग्रैंडफादर ने दीवार पे पेंटिंग पे मतलब वो कुछ चिपकाए थे, जैसे कि जो डेकोरेशंस बनाए थे उसको वो सब फाड़ दिया था, कागज़ के सब पोस्टर्स थे सब फाड़ दिया था। इतना ही नहीं, टोटो का ब्लेजर था जो स्कूल जाने को पहनने के लिए जो रखा हुआ था, टोटो का ब्लेजर भी फाड़ दिया था और फाड़ करके जंगले पर बैठ गया था। तो इस तरह से लोग देखे, कहे कि ये तो बड़ा नोटोरियस है। उसके बाद इसको क्या किया कि पिंजरे में रखे। तब तक दादी भी कंफर्टेबल हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो पिंजरे में रखे। पिंजरे में रात भर किसी जानवर को सोने नहीं दिया। इससे परेशान होकर के दादाजी ने एक गधा था उनके घर, तो गधा वाले स्टेबल में, शेड जिसको कहते हैं, पशुओं के रहने का शेड जो होता है स्टेबल, तो उसको स्टेबल में रखे। लेकिन वो क्या किया कि एक बार ऐसे ही देखने गए, ग्रैंडफादर देखने जाते हैं तो देखते हैं कि वो गधा जो है वो घास नहीं खा रहा है, अपने आप को खींच रहा है, पीछे खींच रहा है। तो हंच बैग पे एक थपकी दिए गधे के, तो वो देखे कि बंदर जो है, टोटो जो है, टोटो उसके कान पे बैठा हुआ है और काट रहा है, उसके कान को काट रहा है। तो ऐसे में उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वहाँ से हटाए। ऐसे ही एक बार जाना था उनको पेंशन लेने, ग्रैंडफादर आतर के ग्रैंडफादर को पेंशन लेने सहारनपुर जाना था। तो वो क्या किए कि एक थैला रखे, थैला में कुछ घास रख लिए, घास में उसके बाद टोटो को उसमें रख लिया। उससे क्या हुआ कि टोटो दिखाई नहीं देगा किसी को, अपना चले गए। जब रास्ते में तो खैर मतलब वो उछल कूद तो कर ही रहा था फ़िलहाल, लेकिन झोले में था, कोई दिक्कत नहीं थी। फ़िलहाल जब वो कहीं नहीं, सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर जब वो उतरे और टिकट वाले को मतलब गेट के पास बाहर आने थे, तो टिकट कलेक्टर ने जब देखा तो आश्चर्य हो गया। अब ये अपना सर बाहर निकाला, पोक्ड आउट हिज हेड, तो ऐसे उसको ग्रीन किया, दांत दिखाया, और उससे क्या हुआ कि टिकट कलेक्टर जो है सहम गया, टेकन अबैक, सहम गया। सहम जाने के बाद उसने कहा कि इसका भी किराया लगा, क्योंकि ये कुत्ता आपके पास बहुत बेचो दूसरे प्रकार का कुत्ता है। तो उसका बहुत बार्गेनिंग की और 3 रुपया उससे किराया ले लिया। तब तक दादाजी थोड़ा सा चिढ़ गए और कहे कि ये हमारे पॉकेट से, ये देखिए ये क्या है, वो टाटाई निकाले पॉकेट से, कहे कि इसका भी किराया ले लीजिए। कहा नहीं नहीं, ये इस तरह का कुत्ता नहीं है, इसका पैसा नहीं लगेगा। तो फिलहाल चले आए। लेकिन एक दिन की कहानी घर पे ये हो गई कि टेबल पर पुलाव रखा था प्लेट में, तो वो टोटो वहाँ पहुँचा और पुलाव खाने लगा। यहाँ तक कि टोटो जब घर पे जैसे उनकी बुआ या कोई आथर की बुआ या कोई और औरत उसके पास से आती जाती थी तो उसको ग्रीन करता था, चिढ़ाता था। चिढ़ाने के बाद साथ साथ उसको उसके कपड़े पकड़ लेता था और कपड़े फाड़ देता था। जो भी घर में चादर वगैरह या ये कह लीजिए पर्दे वगैरह लगे रहते थे तो सबको फाड़ देता था। तो एक तरह से एक परेशानी घर में हुई थी। लेकिन जब पुलाव वाली कहानी आई तो ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। वो क्या किया कि पुलाव उठाया, खाने लगा, और उसके बाद पुलाव लेकर के चला गया पेड़ पे दादी को चिढ़ाने के लिए। अब पेड़ पे गया, वहाँ सारे जो भी पुलाव में जो भी चावल थे सब एक एक चावल खा डाला। उसके बाद दादी को चिढ़ाने के लिए प्लेट को उठा के पटक दिया। प्लेट तो टूट गया, कई टुकड़ों में बंट गया। उसके बाद दादाजी ने सोचा कि अब ये यहाँ रखने लायक नहीं है, क्योंकि इस तरह से परेशानी घर में कर रहा है। हम इतने धनी नहीं हैं कि ये हमारे सामानों को तोड़ता रहेगा और हम इसको बर्दाश्त करेंगे। तो फिर वापस ले गए और 2 रुपये के घाटे में, यानी कि 3 रुपये में उसको पुनः वो कार्ट ड्राइवर को बेच दिए। तो कहानी तो फ़िलहाल इतना ही है। इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है जो बच्चों के लायक है कि हम जानवरों को पेट के रूप में क्यों रखते हैं, या फिर पेट जानवर कौन से जानवर को हम पेट के रूप में रख सकते हैं। हालांकि हम लोग ये देखते हैं कि ये बंदर जो हैं हमेशा अगर उनके आगे पीछे आप रहा जाए तो शायद वो उतनी नोटोरियसनेस नहीं दिखाएंगे।
लेकिन अगर थोड़ा सा उन्हें छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा नोटोरियस हो जाते हैं। इसी तरह से कोई भी जानवर अगर हम उसके इंटरेस्टेड हैं, उस जानवर को रखने के इंटरेस्टेड हैं तो रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके कुछ आदतों से हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और नहीं तो हमें इस तरह से उस पर ध्यान देना पड़ेगा। फ़िलहाल अब इसके लिए इसमें कोई ख़ास बहुत ज़्यादा मीनिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ मीनिंग्स यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। फीडिंग ट्रफ है, अ पार्ट टू फीड इन कैटल। पर्ली, वाइट लाइक पोल्स, परफॉर्मेंस, प्रैंक्स, जैसे जो एंटरटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं या शरारत करते हैं। फेस्ट्स, प्रोवाइडेड, ऑरेंज, ARRANG, ऑरेंज, क्यूरियस, ईगर, उत्सुकता के लिए। ग्रीन, सोड इट्स टीथ, दांत चीवना, खोलना। तो ले लिया आपने। इसका है पोक्ड है, पुस्ड, टेकन अबैक, स्टन्ड एंड स्पीचलेस, मतलब परेशान हो जाना, बोलती बंद हो जाना। इन वेन, फ्रूटलेसली या यूजलेसली, बिना वजह के, बेकार में, झूठ मूठ में। क्वाड्रेप्ड, 4 लेग्ड एनिमल या 4 फूटेड एनिमल, 4 पैर वाले जानवर होते हैं। क्लासिफाइड है, अरेंज्ड इन कैटेगरीज, और प्रोडेड है, पोक्ड, किसी चीज़ को घुसा देना। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका भी देख लीजिए। ट्रम्फेंट, विक्टोरियस, मैंने जैसे कोई विजय प्राप्त कर लेता है। सेबल, असेट फॉर हॉर्स, कैटल होता है, रहने का स्थान। एपरेंट, वेरी क्लियर। हाल्टर, हियर हाल्टर इज अ रोप, रस्सा। हे, दैट इज द ग्रास। ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे। कैटल, दैट इज अ पार्ट। लिड, दिस इज अ कवर। नाउ स्टिकिंग आउट, लिफ्टेड आउट। हॉपिंग, होपिंग, HOPPING, होपिंग, होपिंग है, HOPPING, होपिंग मतलब जंपिंग। हॉल्ड, HAULED, हॉल्ड, पुल्ड, खींचना। टीयरिंग, पुलिंग अपार्ट, यानी खींच करके फाड़ देना। तो इसका भी आप स्नैपशॉट ले लीजिए। वंस मोर, जस्ट यू सी द मीनिंग ऑफ गेट होल्ड ऑफ, मतलब ग्रैब या कैच। स्टफिंग हिमसेल्फ, अपने आप, मतलब जो भी है खा लेना ठूंस ठूंस के। एग्जिट, गोइंग, गोइंग आउट, आउट होता है, गोइंग आउट। ठीक है, स्पिल्ड, स्पाइट है, SPITE, स्पाइट, शो हिज डिसलाइक, मैंने डिसप्लीज दिखाना, नाराज़गी दिखाना। चैटर्ड, मेड स्मॉल साउंड, चैटरिंग करना, बातचीत करना होता है। ऑब्वियसली, क्लियरली है, स्पष्ट रूप से। अफोर्ड, बियर या टॉलरेट, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। फ्रीक्वेंट होता है, अगेन एंड अगेन, बारंबार, पुनः पुनः। और एक है वेल टू डू, मीन्स फेयरली रिच फैमिली। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब ये अब ख़त्म हो गया। अब चलते हैं दोस्तों स्टोरी की तरफ, देखा जाए क्या है। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो की सारे एडवेंचर्स, उसकी सारी शिकायतें, उसकी सारी बदमाशियाँ, क्या क्या वो अदम्य साहस के साथ करता है, साहस इसमें ज़्यादा उसका दिखता है। तो हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? हैव यू, कुछ लोग ऐसे ही रखते हैं बेबी मंकीज़ को, बंदर के छोटे बच्चे को एज ए पेट एनिमल के रूप में रख लेते हैं, अक्सर देखा जाता है। और फिर जो मंकी चार्मर होते हैं
जैसे वो बंदर नाच दिखाने वाले होते हैं, गांव-गांव में घूम घूम के दिखाते हैं, वे लोग भी एक तरह से दो दो मंकी रखते हैं, हैं, एक मेल और एक फीमेल के नाम पे रखते हैं, तो उसका भी नाच दिखाते हैं, उससे पैसे कलेक्ट करते हैं। फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे पेट एनिमल कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं जो मोटरसाइकिल पे चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं, कार में चलते हैं, तो कुत्ते, बिल्ली, बंदर इस तरह से लोगों को पेट में रखते हैं, एक पालतू जानवर के रूप में रखते हैं। दे टेक मच मोर एंटरटेनमेंट एंड एन्जॉय एंड दे फील वेरी प्लेजेंट एंड हैप्पी एट दैट टाइम व्हेन दे हैव अ पेट एनिमल एट लीस्ट। नाउ बट आउट ऑफ इट द मंकीज़ आर वेरी नोटोरियस। निश्चित तौर से मंकीज़ जो हैं वो बड़े नोटोरियस होते हैं, बड़े शरारती होते हैं। ये नोचना, चोथना, टीयरिंग करना, जैसे पुल करना, खींचना, ग्रैब करना, कोई चीज़ ले लेना, तो ये मंकीज़ का स्वभाव होता है। टोटो इज़ अ बैड मंकी है, मतलब बाई नेचर इट वॉज वेरी बैड। तो यहाँ बैड का सेंस यह है कि उसकी बैड का मतलब अब यहाँ मिस्चीवियस से है, शरारत से है। ही वॉज वेरी मिस्चीवियस, ही वॉज नोटोरियस, बहुत नोटोरियस था, बहुत शरारती है। क्या करता है? लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। ओहो, बहुत ज़्यादा शरारती है या बहुत ही ज़्यादा शरारती है, जिसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, चलते हैं। जैसे कि आपने स्टोरी के बारे में जान ही लिया है कि ऑथर अपने ग्रैंडफादर के बारे में बात करता है कि ग्रैंडफादर एक बंदर खरीद के लाते हैं और वो घर पे रखते हैं, ठीक है। तो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, द टोटल at the cost of 5 rupees. He has bought a monkey. The name of the monkey is Toto. monkey का नाम क्या है? टोटो है, छोटा सा बंदर है। उसको कहाँ से खरीदते हैं? From where he brings, from where he bought, तो from टोंगा ड्राइवर। टोंगा क्या है? टोंगा इज ए कार्ट। He has purchased from a cart driver's house. The Tonga driver used to keep the cattle red monkey tied to a feeding trough. टाइड टू अ फीडिंग ट्रक, टाइड वो बांध दिए रहता है कहाँ? फीडिंग ट्रक पे, मैंने जो पार्ट फॉर कैटल्स टू फीडिंग, पार्ट्स फॉर कैटल टू फीडिंग, जिस पे पशु अपना भूसा वगैरह खाते हैं, वहीं बांधा गया था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, मीन्स व्हेन ऑथर्स ग्रैंडफादर saw the monkey was tied in a trough. Now he thought that it is not a proper and suitable place for the monkey. Therefore he decided to buy the monkey. मंकी को खरीदना चाहे क्योंकि यह उसका उचित प्लेस नहीं था जहाँ पे मंकी बांधा गया था। तो उन्होंने क्या किया? ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने अपना एक घर पे जू बनाया था, प्राइवेट जू बनाया था। उसमें टॉर्टाइज भी था, उसमें स्क्वायरल भी थी, उस पर कभी कभी बकरी भी आती थी, हैं। तो इस तरह से कुछ उसमें जानवर थे इनके घर में, जिससे डंकी भी था। तो ये एक अपना प्राइवेट जू बनाए थे। टोटो वॉज प्रीटी मंकी, अच्छा था, देखने में बढ़िया लग रहा था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ beneath डीप सेट आईब्रोज। क्या है? हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड, now shining, glittering with mischief, कुछ शरारत भरी थी उसकी आँखें। The writer has described that the eyes shown some mischievous actions found in monkey. मंकी में कुछ शरारती तत्व भी थे, उसकी आँखों को देख के ऐसे लगता था। डीप सेट आईब्रोज, उसका आईब्रो जो था डीप सेट था, गहरा था और काला था। एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट, हिज टीथ वॉज पर्ली वाइट लाइक पर्ल, मोती के समान सफ़ेद था। उसके दांत जो हैं मोती के समान सफ़ेद थे, लेकिन आँखों के नीचे क्या था? शरारत भरा दिख रहा था। तो वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन द स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो खास करके एंग्लो इंडियन लेडीज़, ऐसे लेडीज़ जो इंग्लिश की जानकार थी,
एंग्लो इंडियन लेडीज़। इस तरह से जो समूह था, से ब्रिटिश राज्य था, तो इसमें एंग्लो इंडियन होना स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार में आप कह लीजिए कि भारतीय औरतों को, ठीक है, इंडियन लेडीज़ को वो फ्राइटेन करता था, भयभीत करता था। जब अपना वो ग्रीन करता था तो सब भयभीत हो जाती थी, उसे देख करके डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन pricked in the sun for many years। ऐसे लगता था जैसे उसका हाथ, जैसे बंदर के हाथ तो बहुत ड्राई दिखते हैं, तो लग रहा था कि काफ़ी दिनों तक वो धूप में से उसकी सेकाई हुई थी और वो सूख गया था ढंग पूरा, तो ऐसा दिख रहा था, ड्राइड अप थ्रू। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, विक्ड थे, दुष्ट थे, उसके फिंगर्स जो थे वो दुष्ट थे, यानी कि वेरी एक्टिव थे। एंड हिज टेल, नाउ द ऑथर हैज़ बीन डिस्क्राइबिंग द होल बॉडी ऑफ मंकी। आँख के बारे में बताया, दांत के बारे में बताया, पंजे के बारे में बताया, अंगुलियों के बारे में बताया। अब क्या बता रहा है, अब ये पूंछ के बारे में बता रहा है, टेल के बारे में बता रहा है कि व्हाट इज द टेल, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक। गेस, इट इज़ ए गुड लुक। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, रामायण सीरियल देखा होगा कि जब हनुमान जी पहुँचे लंका में तो वहाँ उनके पूँछ में आग लगाने की बात आई। वाई? बिकॉज it is supposed that this is a beauty, it adds, the tail adds the beauty of monkeys के ब्यूटी में और चार चांद लगाता है अगर पूंछ है तो। now grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, yes of course, उनका ऐसा विश्वास भी था कि पूंछ जो है एक खूबसूरती और देता है इसको। also served as a third leg, थर्ड हैंड, और यही पूंछ जो है उनके थर्ड हैंड के रूप में भी वो प्रयोग करते हैं बंदर। जैसे कभी डाली से लटक जाना पूंछ के सहारे किसी चीज़ को पकड़ लेना, किसी को मार देना, हैं क्या है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, येस ऑफ कोर्स, डाली से, ब्रांच से ही कुड हैंग फ्रॉम, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, कोई भी चीज़ पकड़ लेने में आसानी होती थी। स्कूप करना जो हाथ से नहीं पाता था तो वो पूंछ से, बंदर जो है वो पूंछ से पकड़ लेता था। एंड एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, दैट ही कैन नॉट होल्ड इट, ही कैन नॉट ग्रैब इट बाय द हैंड्स, सो ही यूज्ड टू कैच द थिंग्स बाय द टेल, थ्रू द मीन्स ऑफ द टेल। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडफादर ऑलवेज fused when grandfather brought home some new birds or animal। तो अब ये देखिए, so it was decided that Toto presence should be kept a secret from her until grandmother always fused when a grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। अब देखिए, why grandfather tried to keep the monkey in a closet hidden from आर्थर्स ग्रैंड मदर। आर्थर के ग्रैंड मदर से उसे छिपा के क्यों रखा? क्योंकि इसमें क्लियर कहा गया है, वेन एवर ग्रैंड फादर ब्रिंग्स एनी न्यू एनिमल आर बर्ड सी फ्यूज्ड, तो वो नाराज हो जाती थी। ग्रैंड मदर क्या होती थी? नाराज हो जाती थी। तो ये क्या डिसाइड हुआ कि वेन ग्रैंड मदर विल बी इन गुड मूड द मंकी विल बी सोन, देयरफॉर वेयर दे हैव केप्ट द मंकी इन अ सीक्रेट क्लोजेट ऑफ टोटो, टोटो के रूम में रखे, एंड फासेंड इनटू द पेग दैट इज एडजस्टेड इन द वॉल, एक खूंटी थी वॉल में, उसी में बांध दिए, मतलब कोई रस्सी लगा के उसको बांध दिए, बंदर को उसमें बांध दिए।
अच्छा, तो अब क्या हुआ? A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, टोटो को खोलने आए कुछ देर बाद, तो क्या देखा? We found that the walls, which had been covered with some ornamental paper, huh, chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. So, naked brick and plaster. My grandfather has decorated the walls by collecting some good papers, photographs, and so on. Toto has torn all things. सबको नोच डाला था. अब ईंटा और प्लास्टर दिखाई दे रहा था दीवार का. सब कुछ ख़त्म कर दिया था, सबको फाड़ डाला था. ठीक, तो अब क्या है? Which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. ब्रिक और प्लास्टर, ईंटा और ये प्लास्टर दिखाई दे रहा था, और कुछ नहीं. तो फिर आगे क्या क्या है? द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket. wrenched from its socket, uprooted from its socket. मैंने जो सॉकेट में इसको एडजस्ट किया गया था तो वो निकल गया, वो खींच दिया था, खूंटी बाहर आ गई थी. एंड माई स्कूल ब्लेजर, अब स्कूल ब्लेजर का क्या किया? विच हैड बीन हैंगिंग देयर was in shred, was in pieces. चिथड़ा मचा दिया गया था. आई वंडर व्हाट ग्रैंड मदर वुड से. अब ग्रैंड मदर क्या कहेगी? ही वॉज सरप्राइज्ड. व्हाट ग्रैंड मदर वुड से अबाउट इट. शी विल बी मोर एंड मोर, वो और ज़्यादा नाराज हो जाएगी. बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, थोड़ा भी चिंतित नहीं हुए. वाई? ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस. टोटोज के प्रैंक से, टोटोज के इस खेल से वो बहुत खुश हो गए थे. ऐसा क्या है? दैट ही लाइक्ड इट. ही इज क्लेवर. उन्होंने कहा कि ये क्लेवर है, चालाक है. सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर he could have tied the torn piece of our blazer into a rope. क्योंकि अगर इसे भागना रहता तो ये जो भी चिथड़ा मचाया है तो उसको गांठ दे दे करके एक रस्सी बना लेता. ठीक है, और उस रस्सी के सहारे एंड मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो, और विंडो से ये बाहर चला जाता. हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट. अभी सीक्रेट था, गोपनीय था, छिपा हुआ था. Toto was now transferred into a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. Now, Toto has been transferred to a new place. The new place was the servants' quarter. And servants' quarter, there was a room in the servants' quarter that grandfather has made a private zoo there. तो वहाँ एनिमल्स रहते थे उस केज में. कुछ एक केज था जिसमें वो एनिमल्स रखे थे. तो वो सब क्या थे? दे वर लिविंग सोशिएबली टुगेदर. आपस में सब बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे, हैं, बड़े इत्मीनान से रहते थे. जैसे कि कौन कौन से थे? अ टॉर्टाइज, एक कछुआ था, टॉर्टाइज था. अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल, एंड फॉर ए वाइल, कभी कभी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट भी वहाँ रहती थी. नाउ बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. रात में किसी को सोने नहीं देती थी. वो बंदर जो था वो किसी भी जानवर को रात में सोने नहीं दिया. No one could sleep through the night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो उन्होंने क्या किया? ग्रैंडफादर को जाना था सहारनपुर पेंशन लेने. तो सोचे कि जब पेंशन लेने जा रहे हैं तो इन दिस टाइम टोटो शुड एक्कम्पनी मी. तो टोटो को भी हम
अपने साथ लेते चलें, वरना ये हो सकता है और नोटोरियसनेस दिखा दे और दिक्कत पैदा कर दे। इसलिए ग्रैंडफादर हैज़ डिसाइडेड टू कैरी टोटो अलॉन्ग विथ हिम टू सहारनपुर। अब ले कैसे जाएंगे? हाउ विल ही? अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर। अनफॉर्चुनेटली अब राइटर हैज़ बीन रिपेंटिंग, यहाँ कुछ पश्चाताप कर रहा है, दैट आई कुड नॉट सी द कंडीशन, आई कुड नॉट सी द मिस्चीवियस एक्शन ऑफ टोटो डन टू द टिकट कलेक्टर एंड समबडी एल्स। कुछ मैं देख नहीं पाया, बस केवल ग्रैंडफादर आकर के हमको बताए तभी हम उसके बारे में जान पाए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. After he came to Dehradun, he has informed me. A big black canvas kit bag, कैनवस का कपड़े का बना हुआ किट बैग था, उसमें क्या किया उसको, was provided for Toto, that was given to Toto, कि मतलब टोटो अब इसमें रखा जाएगा और हम लेकर जाएंगे। दिस विथ सम एक्स्ट्रा एट द बॉटम में कुछ एक्स्ट्रा यानी कि पुआल भूसा या घास कुछ रख दिए। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अ न्यू प्लेस टू लिव इन, उसमें रख दिए कि अब लेकर के चलेंगे सहारनपुर। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप, तो देयर वॉज नो वे टू एस्केप, अब वो भाग नहीं सकता था। जब बैग बंद हो गया तो उसमें से वो निकल नहीं सकता था। टोटो वॉज टू स्ट्रॉन्ग, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग से अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था, इतना वो टाइट था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और पूरे रास्ते में वो कैनवस इतना मजबूत था, इतना कपड़ा मजबूत था कि वो दांत से काट करके भी नहीं निकाल सकता था, वो निकल नहीं सकता था उसमें से। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेशनली जंप इनटू द एयर। अब क्या था उसमें, बस केवल उछल कर सकता था, मान लीजिए कहीं रखा है तो इधर उधर गिर सकता था और उसमें से उछल सकता था, ऐसे पता चले कि हाँ इसमें कुछ रखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं सकता था। एंड एग्जीबिशन, एक प्रकार का जो प्रदर्शन है, दैट अटैच्ड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलूकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर यह एक क्यूरियस एपिसोड देखने को मिलता है। तो अब आगे देखते हैं। टोटो रिमेन्ड इन द बैग, टोटो अब बैग में है, एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल पे, जैसे गेट पे कि टीटी खड़े रहते हैं कि भाई अब आप ट्रेन से उतरे हैं, अब प्लेटफॉर्म के रास्ते होकर के एंट्रेंस से बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे समय में टीटी चेक करते हैं कि आपने टिकट लिया था कि नहीं लिया था। तो ऐसे समय में जब वो टिकट दिखा रहे थे तो टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट, अपना उस कैनवस का जो झोला था, बैग था, उसमें से अपना सर बाहर निकाल देता है। पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव अ टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, टिकट कलेक्टर को एक वाइड ग्रीन है इस तरह से देता है तो टिकट कलेक्टर भयभीत हो जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे तो फिर आपको इसके आगे की स्टोरी बताते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।